imagine this, that you have been working in any machine learning project, and after few days you want to add some additional features in your project. You have tried to recreate a new file, you have renamed some folders, did some changes in the overall structure of the code, and when you try to run that specific newer version of your code, suddenly your code was not working, right? Now you want to go back to your previous version, and you tried to press Control plus Z, but sadly nothing works for you. Now you went to the download section in a hope that maybe you will be able to get the backup files, and when you search the files, you have a collection of bundle of files with respect to the same project. Maybe you have renamed it final.py, final underscore v2.py, just like the way we usually do, because whenever we do changes, we try to make it a new version. But the problem was, after a few days, we don't remember that, which one was the final version which was working for us. And that is the real problem. I hope that many of us have faced the same problem. So, in this specific discussion, I'll be talking about one very interesting tool called as Git and GitHub, how they work together and help us to solve this problem, how automatically our system will try to capture all the meaningful information and, rename the versions accordingly. If at any point of time, if I have made some new changes, it will just check, track that, and if I really want to go back, I can easily go back to the previous version as well. So that is where versioning control system, which is Git, will come into picture. And to store the files in a remote repository, we have a GitHub as well. So in this specific discussion, we will be talking about in depth. You can consider it as a crash course where you will be able to observe that I'm starting from very scratch, considering that there are people who are not at all aware about this specific concept. And then I'm doing a practical demonstration on one machine learning project to help you understand that how the complete flow will go. One humble request is that whatever implementations I'm doing in this specific part of the discussion, you can try to implement the same thing at your end. You can use any project. Obviously, there is no need to use the similar project which I'm using. You can use any project, but the main thing is the commands, which you should be aware of. For those people who are not aware about me, my name is Priya Bhatia, and it's been almost 6 years. I'm teaching and I'm helping the learners to, explain the complex concepts in the easiest way. So please make sure that if you are new, do subscribe to my channel and do hit like button and share the video with everyone. It will really means a lot to me. With that, let's get started. So this is all about Git and GitHub discussion. बहुत लोगों को पता भी है, बट बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन भी है इस टॉपिक के बारे में. बहुत लोगों को ये लगता है कि गिट और गिटहब सेम है, बट वो एक्चुअली में अलग चीजें हैं. कैसे वो अलग है, उन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सेशन को एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उस स्टोरी को समझते हैं. ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास में एक यूजर है. लेट्स सपोज कि हमारे पास में एक यूजर है. मे बी ही इज द यूजर. यूजर नेम इज प्रिया भाटिया. तो लेट्स से कि ये मेरा मैं हूं. ठीक है, और मुझे एक कोड डिजाइन करना है. मैं एक अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग ऑन एनी मे बी मशीन लर्निंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन machine learning specific project. That's fine. अब लेट्स से कि जब तक मैं अकेले अपने सिस्टम पे इंटरनली काम कर रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी स्मूथ. बट फिर एक और यूजर आए, और उन्होंने बोला कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू कोलेबरेट विद यू.
इन द सेम प्रोजेक्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है। तो उन्होंने बोला कि आई आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन कोलेबरेटिंग विद यू। मे बी कोई मेरा एक लर्नर था, उन्होंने बोला कि प्रिया आई ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क विद यू बिकॉज मे बी आई विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट एंड आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट विच यू आर बिल्डिंग। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप काम कर सकते हो। लेट्स से कि उस लर्नर का, उस कोलेबरेटर का नाम है अमन। ठीक है, तो अमन मेरे पास आया। अमन ने, मेरा एक लर्नर है, उसने बोला कि मैं भी आपके प्रोजेक्ट पे काम करूंगा आपके साथ। अब अमन भी उसी सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियसली दोनों सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो जो भी फाइल्स ये अपडेट कर रहे होंगे, ऑब्वियसली एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में हो सकता है कि मल्टीपल फाइल्स हो सकता है कि आपके पास में एक डेटा इंजेक्शन डॉट पीवाई करके फाइल हो सकता है कि आपके पास में एक डेटा एनालिसिस करके एक फाइल हो सकता है कि आपके पास में एक मॉडल ट्रेनिंग करके फाइल हो सकता है कि आपके पास एक मॉडल प्रिडिक्शन करके फाइल मतलब फेजेस के हिसाब से मे बी यू विल बी हैविंग मल्टीपल फाइल्स इन योर प्रोजेक्ट। हो सकता है कि आपके पास में एक रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी करके फाइल हो प्रोजेक्ट में। और फिर हो सकता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को कहीं पे डिप्लॉय कर रखा है यूजिंग स्ट्रीमलेट, तो उस हिसाब से आपके पास कोई इंडेक्स डॉट पीवाई करके फाइल हो, स्क्रिप्ट डॉट पीवाई करके फाइल हो एंड सो। सो द पॉइंट इज कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पास सिर्फ एक ही फाइल अवेलेबल होगी, हमारे पास मल्टीपल फाइल्स वहां पे अवेलेबल होती है। बिल्कुल ठीक बात है, होता है ऐसा। एक फाइल तो नहीं होती है, बट ऑब्वियस है ये चीज तो। अब मान लो प्रिया ने अमन को बोला कि अमन देखो, मैं ना अभी के लिए डेटा इंजेक्शन पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक एक और चीज है, हो सकता है कि अपने पास में डेटा सेट भी अवेलेबल हो डॉट सीएसवी फाइल, लेट सपोज। तो ये सभी फाइल्स लेट सपोज कि अपने पास में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पे अमन भी है, काम कर रहा है उसी प्रोजेक्ट पे, और यहां पे प्रिया भी है। सो ओवर हियर, अब मैंने अमन को बोला कि डेटा इंजेक्शन वाली फाइल पे लेट सपोज कि मैं काम कर लेती हूँ। उसने बोला ठीक है, मैं डेटा को इंजेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने अमन को बोला कि डेटा एनालिसिस में भी तुम करो, और मे बी मॉडल ट्रेनिंग पे मैं फोकस करती हूँ। मैंने काम को एलोकेट कर दिया। अमन ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कर लेते हैं। बट ऑब्वियसली अमन के पास में अपना खुद का सिस्टम होगा, अमन के पास में अपना खुद का लैपटॉप होगा जिसपे वो काम कर रहा होगा ना। अमन के पास में अपना खुद का लैपटॉप होगा, और प्रिया जहां पे काम कर रही होगी उसके पास अपना खुद का लैपटॉप होगा। तो जब ये एक कॉमन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो इनके पास में आइडियली एक कॉमन एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पे ये अपने चेंजेस को सिंक कर रहे। बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, जहां पे ये जो कॉन्सेप्ट है गिटहब का, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सो व्हाट वाज द टाइम, अगर अमन को कुछ फाइनल चेंजेस प्रिया को शेयर करने हैं, तो वो कैसे करता था? किसी को आइडिया कैसे करेंगे? अगर मान लो अमन ने लेट से डेटा इंजेक्शन फाइल में ही चेंजेस किए, ऑब्वियसली अब उसको प्रिया के साथ में कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रिया भी उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। अगर इन दोनों को आपस में इंटरेक्शन करनी है, तो वाई हाउ दे विल इंटरेक्ट, मतलब कि कोड कैसे शेयर करे, कहने का मतलब ये। तो आप बोल सकते हो कि एक काम कर सकते हैं लोग कि अमन जो भी इसने चेंजेस किए उसको एक जिप फाइल के अंदर स्टोर करेगा, डॉट जिप के अंदर। हम आज भी कई बार ऐसा करते भी हैं। और उस जिप फाइल को हो सकता है कि वो वाया ईमेल, या फिर हो सकता है कि वाया
पेन ड्राइव शेयर कर दे, वाया ईमेल, वाया पेन ड्राइव, हो सकता है कि वो शेयर कर दे। क्या ये बात सही है? तो वो चेंजेस कहीं ना कहीं प्रिया के पास पहुंच जाएंगे, प्रिया उस फाइल को अनजिप करेगी एंड देन उसके पास में अपडेटेड फाइल्स आएंगी जो कि अमन ने शेयर करी है। क्या ये प्रोसेस स्मूथ है? क्या ये प्रोसेस कंसिस्टेंट है? मे बी है, बट प्रॉब्लम ये है कि कल को मान लो प्रिया ने फिर से चेंजेस किए और प्रिया उन चेंजेस को शेयर करना अमन के साथ में भूल गई, तो बहुत बड़ी इनकंसिस्टेंसी होगी। होगी कि नहीं होगी? आई थिंक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और लेट सपोज भूली भी नहीं, वो शायद कर भी रही है, बट क्या ये एक सीक्वेंशियल लर्निंग नहीं हुई कि एक टाइम पे अमन काम कर रहा है, फिर अमन उस काम को जिप में सेव कर रहा है, उसके बाद वो प्रिया को शेयर कर रहा है, प्रिया ऑन टॉप ऑफ इट कुछ एक्सटर्नल चेंजेस कर रही है, फिर से जिप फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर रही है और फिर वो अमन के साथ में शेयर कर रही है। तो क्या यहां पे एट ए टाइम उस फाइल के साथ में एक ही बंदा काम नहीं कर पा रहा? सोचो जरा। और कंपनीज में तो एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे प्रिया और अमन जिनसे एम्प्लॉयज काम करेंगे। ऐसा तो है ही नहीं कि सिर्फ एक ही बंदे से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। यस और नो? वहां तो 5-6 लोगों की टीम होती है एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो अभी तो ये कहानी सिर्फ 2 लोगों की थी, प्रिया और अमन की। बट अब आप मान लो कि इसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मेरे पास में मेरे अंडर मेरे मैनेजर ने बोला कि प्रिया आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब लेट से मैं कंपनी के प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से आ गई, पर्सनल प्रोजेक्ट की जगह। तो आप एक काम करो, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप एक काम करो, आप अपने प्रोजेक्ट में थोड़े और एम्प्लॉयज को हायर कर लो ताकि डिलीवरेबल्स देने में आसानी रहे। अब जब एक ही प्रोजेक्ट के अंदर 1 2 3 4 5 6 पीपल काम करेंगे, तो क्या लोगों को बढ़ाने में मेरे को हेल्प मिल रही है क्या? यहाँ पे क्या पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है? क्या पैरेलली बहुत सारे लोग मेरे प्रोजेक्ट पे काम करके डिलीवरेबल्स को फास्टली दे पाएंगे, कंसीडरिंग जो अभी मेरे पास एनवायरमेंट है? क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ये मेरे लिए हेल्पफुल है? ऑब्वियसली मैं मंथली बेसिस पे हर एक एम्प्लॉय को सैलरी तो दे रही हूँ, बिकॉज आई हायर्ड देम। बट क्या मैं उनसे काम निकलवा पा रही हूँ महीने के महीने का? या फिर उनके पास हर महीने 2 या 3 दिन ऐसे आते हैं जहां पे उनको काम करना पड़ रहा है, या वीकली सिर्फ एक दिन ऐसा आ रहा है जहां पे उनको काम करना पड़ रहा है? एग्जैक्टली exactly. तो इस पूरे के पूरे यूज केस के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम ये है कि देर इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू ट्रैक द चेंजेस इन द फाइल्स। कि अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और हर कोई अपने अपने फाइल्स में चेंजेस कर रहा है, तो किसने क्या चेंज किया, किस टाइम पे चेंज किया, वो ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी चीज, इससे क्या हो रहा है कि मैं कोलेबरेट नहीं कर पा रही अपनी टीम के साथ। इट्स डिफिकल्ट टू कोलेबरेट विद अदर्स। उसके बाद अगर मान लो किसी ने चेंजेस किए, तो आई डोंट हैव अ हिस्ट्री, इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन हिस्ट्री। भाई किसी ने गलत चेंजेस भी कर सकता है कोई बंदा, है ना? और लेट से मैंने न्यू हायर्स को अभी अभी अपने टीम में ज्वाइन किया है, तो एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि कौन ऐसा है जो गलत चेंजेस कर रहा है, ताकि मैं उनके पास जाके उनको शायद गाइड कर सकूं कि दिस इज समथिंग विच यू हैव डन रॉन्ग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, या फिर आपको इस स्पेसिफिक स्किल पे काम करने की जरूरत है। अभी तो मुझे पता ही नहीं कि कौन क्या चेंजेस कर रहा है, राइट? एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आई कैनॉट रीस्टोर द प्रीवियस रिविजन्स ओवर हियर। अगर मान लो गलती से कुछ चेंज हो भी गया है अनइंटेंशनली किसी नए ट्रेनर से,
तो उस केस में मेरे पास कोई ऐसा तो बैकअप हो कि अगर मुझे अपने पहले वाले वर्जन पे जाना है, अपने पहले वाली रिवीजन पे जाना है, तो मैं जा सकूं, तो मैं जा सकूं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये सारी क्या थी? प्रॉब्लम्स थी। सो देर इज अ डिफिकल्ट टू रीस्टोर द प्रीवियस वर्जन्स। ये सब क्या थे? प्रॉब्लम्स थे। अब इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए वो कहते हैं ना रामबाण इलाज, एक तरीका निकाला गया। क्या? दैट इज व्हाट दे कॉल्ड एज गिट। तो इन्होंने बोला कि इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो है गिट। क्यों? गिट में ऐसा क्या है? किसी को पता? गिट में ऐसा क्या है? गिट एक तरीके से अगर आप देखो तो इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सो व्हाट इज गिट? You will observe that Git is a Git is a distributed मतलब parallel version control system which is majorly used to track the changes in the file। तो जो प्रॉब्लम्स आपको इस टाइम पे हो रही थी, वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कौन लेके आया? गिट लेके आया। गिट ने बोला कि मैं एक तरीके से वीसीएस हूं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम हूं, जो कि आपके फाइल्स में जितने भी चेंजेस होंगे उसको ट्रैक करूंगा। ना केवल मैं ट्रैक करूंगा चेंजेस को, बल्कि मैं एक हिस्ट्री रखूंगा, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, कौन कर रहा है, किस टाइम पे हो रहे हैं, टाइमिंग क्या है। और अगर किसी को अपने प्रीवियस वर्जन के पास जाना होगा, तो आई विल गिव दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू गो बैक टू द प्रीवियस वर्जन एज वेल। सो it not only be useful to track the changes in the file, but it simply allows us to maintain the history of our work, help us to collaborate with others, and revert to previous versions if something goes wrong। क्या मैं ये बात समझ में आ रही है? इज दिस समथिंग विच इज क्लियर टू एवरीवन? तो अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो मैं अपने प्रीवियस वर्जन के पास जा सकती हूँ। सो दीज आर द फ्लेक्सिबिलिटीज विच इट हैज गिवन टू मी। डन? अब वो कैसे करता है देखें थोड़ा सा। हाउ एक्चुअली इट हेल्प्स अस टू डू दिस स्पेसिफिक टास्क, शेल वी गो अहेड एंड चेक दैट आउट। उसके लिए आपको अपने सिस्टम में गिट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे विंडोज में इंस्टॉल करना है, आई विल से गिट इंस्टॉल फॉर विंडोज। तो विंडोज का अलग सेटअप है, मैक होगा तो अलग सेटअप करोगे, एंड सो ऑन। लिनक्स है तो अलग। उसके हिसाब से आपको फाइल्स को इंस्टॉल करना है। अब क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बोला था कि वी विल बी कवरिंग अप गिट एंड गिटहब इन अवर अपकमिंग सेशन, सो आई एम प्री अज्यूमिंग कि एवरीबडी हैज गिट इंस्टॉल्ड इन देयर सिस्टम। क्या सभी के सिस्टम में गिट का इंस्टॉलेशन ऑलरेडी दे रखा है? ऑलरेडी है? क्या आप लोगों ने करा हुआ है? इज देयर एनीवन जिसका गिट इंस्टॉल नहीं है? देखो, अगर नहीं है तो मैंने जैसा कि बोला, यू हैव टू इंस्टॉल इट।
अभी के लिए यू हैव टू फोकस ऑन द सेशन। तो जरूरी नहीं है कि एकदम से अब पैनिक हो के आप सोचो कि मैं कैसे करूं। अभी के लिए वैसे भी आपको सेशन को समझना है। तो अगर नहीं है तो दैट इज द, सो वट एवर स्टेप्स आई एम इम्प्लीमेंटिंग टूडे, उसमें सबसे पहला काम होगा, यू नीड टू इंस्टॉल गिट बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस भी ओएस पे आप काम करते हो उसके बेसिस पे आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास विंडोज है, तो मैंने मेरे सिस्टम में गिट जो है वो विंडोज के स्पेसिफिक इंस्टॉल हो रखा है। नाउ टू चेक एंड टू वेरीफाई दैट आई विल यूज गिट बैश। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगी यू कैन सी एक स्क्रीन मेरे पास में आ रही है। अब यहां पे इफ आई विल चेक गिट वर्जन, जिन लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे दे कैन ऑल्सो वेरीफाई कि आपके पास में ना गिट वर्जन करके वर्जन आना चाहिए गिट का। अगर नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है, मतलब कि प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं हो रखा है। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद वेरीफाई योर गिट वर्जन वाया गिट वर्जन कमांड। ठीक है, मैक के लिए थोड़ी अलग कमांड है, ब्रू करके होता है, ब्रू इंस्टॉल गिट। तो वो सब आप अपने ओएस के हिसाब से देख देख लेना। ठीक है ना। तो इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल के बाद वेरीफाई करना है यूजिंग द स्पेसिफिक कमांड कि आपका गिट प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। ऑल गुड। अब उसके बाद अगर इंस्टॉल हो गया है तो आपको ना गिट में कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, गिट तो मेरी हेल्प करेगा टू रीस्टोर द चेंजेस, गिट मेरी हेल्प करेगा टू ट्रैक द फाइल्स, बट मुझे एक कॉमन सर्वर चाहिए ना जहां पे वो सभी चेंजेस मेरे से जाके सेव्ड हो जाए। आई नीड वन कॉमन सर्वर, आई नीड वन रिमोट सर्वर जहां पे ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी मेरे से कनेक्ट कर सकता है। कोई भी मेरे फाइल्स को, मतलब अगर मुझे उनके साथ कनेक्ट करना है, एक कोलेबरेटिव एनवायरनमेंट में काम करना है, तो वो मुझे रिक्वेस्ट भेज सकता है, चेंजेस कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। जो सर्वर है हमारे पास में वो क्या है, वो क्या है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज गिट हब। वो सर्वर क्या है, गिट हब। सो गिट हब क्या है, इफ यू विल सी फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ गिटहब। अब बहुत लोगों को लगता है कि गिट और गिटहब दोनों सेम बात है, नहीं, अलग है। गिटहब क्या है, इट्स अ सर्वर, यू कैन इमेजिन। सो यू कैन से इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लाउड बेस्ड डेवलपर प्लेटफॉर्म which is used to store, manage, track, share software code. It serves as a central hub. एक तरीके से एक सेंट्रल हब है, एक सर्वर है, which is basically over 180 million developers to collaborate on an open source and private software projects. क्या हम सबके पास में गिटहब की रिपोजिटरीज है? क्या हम सबके पास में गिटहब का अकाउंट ओपन है? क्या मैं प्री एज्यूम कर सकती हूँ कि सबने कभी ना कभी अपने प्रोजेक्ट्स को अपने गिटहब अकाउंट में डाला होगा? या फिर कोई ऐसा भी है सेशन में जिसने कभी गिटहब प्रोफाइल बनाई ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है? अगेन, नहीं देखा तो डोंट बी पैनिक, बट मेक श्योर कि आप अपने सेशन के बाद में जाके इसको क्रिएट करो। सो हमें ये समझ में आया गिट क्या है, गिटहब क्या है। अच्छा, क्या हमारे पास सिर्फ एक ही सर्वर गिटहब ही है क्या, या कोई और सर्वर के नाम भी सुने आपने? सो ये तो हो गया वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वीसीएस। ये हो गया वर्जन कंट्रोल सिस्टम रिमोट, दिस इज कॉल्ड एज वीसीएस रिमोट। तो रिमोटली एक तरीके से सर्वर है, एक सेंट्रल हब है जिसमें बहुत सारे डेवलपर्स आके कोलेबरेट करते हैं। बट गिटहब के अलावा कहीं कोई और भी हमारे पास सेंट्रल हब है जिसे यूज करते हैं लोग अपने इंडस्ट्री वर्क के अंदर? किसी ने किसी और का नाम भी सुना है गिटहब के अलावा? गिटहब तो काफी फेमस है ही, गिटहब तो काफी फेमस है ही, बट इसके अलावा आई एम आस्किंग।
किसी ने गिटलैब का नाम सुना है? गिटलैब, देखिए जरा क्या है गिटलैब। GitLab is a complete DevSecOperations platform that manages the entire life cycle of a software development. Unlike GitHub, which started primarily as a code hosting site, GitLab was designed from the bringing as a single application covering everything from planning to security to deployment. तो जैसे ही आप GitHub को यूज करते हो, वैसे बहुत सारे कंपनीज आजकल GitLab को भी यूज कर रहे हैं। इसमें वो वाली फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही कि यू कैन जस्ट वर्क ऑन अपलोडिंग योर कोड एंड एवरीथिंग, बट इसके अलावा आप दूसरे टास्क भी परफॉर्म कर सकते हो ऑल इन वन। बेसिकली जो एक सिंपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हम लाइफ साइकिल सुनते हैं, वो सभी टास्क आप यहाँ पे कर सकते हो। सो इट्स काइंड ऑफ ऑल इन वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर सकते हो, सोर्स कोड को मैनेज कर सकते हो, सिक्योरिटी को चेक कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, CI/CD पाइपलाइन आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। सो सब चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। ऐसे ही कितने लोगों ने गिट टी का नाम सुना? Again, Git is a lightweight, self-hosted Git service designed to incredibly fast and easy to run. It provides a visual interface very similar to GitHub, but it uses a minimal system resources, making it perfect for low-powered servers. बेसिकली अगर आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें आपको पता है कि बहुत ज्यादा सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस गिट्टी। डन। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हालांकि हम सुनते हैं गिटहब के बारे में, जरूरी नहीं है कि गिटहब के अलावा कोई और चीज है नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि जो फेमस होता है उसको बहुत ज्यादा हाइप मिल जाता है। बाकी भी हमारे पास में रिमोट सर्वर्स हैं जिनमें हम यूज कर सकते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि हमने सुना नहीं होता। तो कौन कौन से मैंने बताए? गिटलैब है, गिट टी है, ये सब तो है ही। मतलब इस पे तो इन पे तो मैंने भी काम किया, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो कंपनीज यूज करती हैं इनको, ठीक है। बट ऑब्वियसली मैंने भी, अगर आप मुझसे पूछो ज्यादा काम किसमें किया है, आई हैव यूज गिटहब अ लॉट मोर। एंड आज भी अगर मैं किसी भी प्रोजेक्ट को अपलोड करती हूँ अपने गिटहब प्रोफाइल पे, तो गिटहब ही दिमाग में आता है कि आई हैव टू नाउ अपलोड इट अंडर माय गिटहब रेपो। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी गिटहब रेपो दिखाती हूँ, क्या पता बहुत लोगों ने देखी भी हो। तो दिस इज माय गिटहब रेपोजिटरी। अब इसमें जब भी आप गिटहब रेपोजिटरी को डिजाइन करते हो ना, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस पे ध्यान देना जरूरी है। कोई भी अगर आपके गिटहब की रेपोजिटरी पे आता है तो उसको पता चलना चाहिए कि आप कौन हो, है ना, आप करंटली कर क्या रहे हो, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग राइट नाउ, व्हाट इज योर पास्ट एकेडमिया प्रोफाइल, व्हाट इज योर प्राइमरी स्किल। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर वही लोग एंटर करते हैं जो लोग कोडिंग, डेटा स्पेसिफिक फील्ड, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट शोकेस करते हैं। ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स अगर उस बैकग्राउंड में नहीं है तो वो तो नहीं जाएंगे इस पे। तो अगर कोई भी बंदा आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, गिटहब रेपोजिटरी पे आ रहा है, तो उसे पता तो हो कि हु आर यू। सो यू कैन मेंशन, आई हैव सीन देयर आर सो मेनी पीपल हु डोंट हैव अ रीडमी फाइल इटसेल्फ टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ। तो उससे पता नहीं चलता कि क्या बैकग्राउंड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बैकग्राउंड AI डोमेन में है, अगर मेरा बैकग्राउंड, मेरा इंटरेस्ट डेटा डोमेन में है, तो मेरे प्रोफाइल से पता चल जाएगा किसी को भी। बिकॉज दे विल सी ऑन द वेरी फर्स्ट पार्ट कि okay, I am a founder of this Tech for All with Priya. What I am teaching is this data science DSA. What is my degree? uh, Masters AI from IIT Hyderabad. Where exactly currently I am working? Turing. Okay, I have my channel as well. What is my motive? What is my achievement? And then the skill set. So from the skill set itself, people will get to know. And afterwards, if they want to reach out to me, if they're interested to collaborate with me, if they're interested to do any networking with me, they can reach out to me via my email. Then there are different connection links I have shared, my stats I have shared, everything. इसको क्रिएट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता। आपको यूजर नेम के अंडर जाके आपके यूजर नेम, जैसे मेरा यूजर नेम है Priya6971, रीडमी फाइल को क्रिएट करना होता है। उस रीडमी फाइल के अंदर आप ये सब कुछ डिफाइन करते हो, जो कि आपके मेन पेज पे, यूजर वाले पेज पे दिखाई देता है। इट्स सो सिंपल।
People feel that it's very complex task, but it's very simple task. कितने लोगों का है इंट्रोडक्टरी पेज गिटहब पे? How many of you have introductory page in their GitHub? One learner has said yes. 2, 3, 4. Very good. It means there are people who have the introductory page. अब जिन लोगों के जो एज अ फ्रेशर कर रहे हैं, तो वो अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. अब हम आते हैं रेपोजिटरीज पे. ये वो सभी रेपोजिटरीज है जो कि आप क्रिएट करते हो टू बिल्ड योर प्रोजेक्ट, है ना. अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए दिस इज द रेपोजिटरीज दैट यू विल क्रिएट. ठीक है जी. इन रेपोजिटरीज के अंदर आप करते क्या हो? यू ट्राई टू अपलोड द फाइल्स. फॉर एग्जाम्पल आप फर्दर फोल्डर्स क्रिएट करते हो एंड उसमें जो भी आपको फाइल्स डालनी है, फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली आई होप मेनी पीपल नोज दैट आई यूज टू क्रिएट मल्टीपल वीडियोज अराउंड डेटा साइंस, डीए, डीएसए ऑन यूट्यूब. तो मेरा ऑब्वियसली मैक्सिमम जो कंटेंट होगा वो कंटेंट क्रिएशन की तरफ होगा, बट यू विल फाइंड सेवरल प्रोजेक्ट्स एज वेल, राइट. तो यहां पे आपको फॉर एग्जाम्पल फिनटेक फ्रॉड डिटेक्शन, हेलमेट डिटेक्शन, कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन, California housing project, then we have a dashboard building project, medical image processing project, barcode QR code generator project, research paper title generation project. Projects भी दिख जाएंगे. ओके. आज के सेशन में हमारा फोकस प्रोजेक्ट बिल्ड करने का नहीं है, क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी मशीन लर्निंग की दुनिया में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाउ कैन वी डू दैट. यस एवरीवन, देखा है ना हमने कि कैसे हम किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं, कैसे हम किसी भी मॉडल को ट्रेन करते हैं, कैसे हम किसी भी मॉडल को इवेल्युएट करते हैं. हैव वी कवर्ड अप ऑल दोस थिंग्स? डिप्लॉयमेंट नहीं देखा, बट आई थिंक हमने मॉडल इवेल्युएशन तक सब देखा अपनी जर्नी में. यस और नो? देखा है कि नहीं देखा? देखा है. तो मैं ना अभी क्या करूंगी, मेरे पास में कुछ प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं लोकली सिस्टम के अंदर, उनको मैं एक फोल्डर को उठा के कॉपी कर लूंगी. हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि कैसे हम गिट और गिटहब को यूज करते हुए उन फाइल्स में चेंजेस कर सकते हैं, उन फाइल्स को ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी रेपोजिटरी में. वो सब हमें समझना है. करें स्टार्ट. तो क्या हमें मेजरली गिट और गिटहब के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया, और इसके जो भाई बंधु हैं वो भी समझ में आ गए? डन. प्रैक्टिकल स्टार्ट करें अभी. अगर थियोरेटिकली हमें चीजें समझ में आ रही हैं तो हमने इंस्टॉल कर लिया, आई एम अज्यूमिंग हमने चेक कर लिया गिट वर्जन वहां पे अवेलेबल है. अब ऑब्वियसली जब आप गिटहब में प्रोफाइल बनाते हो तो आपका एक यूजर नेम होगा और आपका एक पासवर्ड होगा, आपका ईमेल आईडी होगा. ये दो तीन चीजें होती है जो ऑथेंटिकेशन करती हैं ओवरऑल. यस और नो? ये दो तीन चीजें होती हैं जो कि आपके पूरे जो गिटहब के प्रोफाइल है उसको ऑथेंटिकेट करती हैं. हर कोई बंदा तो मेरी प्रोफाइल पे जाके ऐड नहीं कर सकता रेपोजिटरी. मेरा खुद का यूजर नेम है, यूजर नेम तो चलो सबको विजिबल भी होता है, बट आई हैव द आईडी, आई हैव द पासवर्ड, एवरीथिंग, राइट एवरीवन. तो उस स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर मुझे अपने गिट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है. किसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है? कि भाई मेरे गिटहब से कनेक्ट करने के लिए मैं आपको अपना यूजर नेम बता रही हूं और अपनी ईमेल आईडी बता रही हूं. तो कैसे करते हैं? बिकॉज मेरा तो ऑलरेडी हो रखा है, बट आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू कमांड गिट कॉन्फिग, एंड उसके बाद आप यहां पे मेंशन करते हो ग्लोबल यूजर डॉट नेम, एंड उसमें आप अपना यूजर नेम डिफाइन कर देते हो कि जैसे मेरा यूजर नेम क्या है, प्रिया6971, या फिर प्रिया भाटिया. अपना यूजर नेम डिफाइन कर सकते हो, जो भी आपका यूजर नेम है, जो भी आपको डिफाइन करना है. फिर ऐसे ही आप यूजर नेम के बाद डिफाइन करोगे आपका ईमेल. जैसे मेरा जो ईमेल है वो है priya.bhatia6971@gmail.com. तो इस तरीके से आपने अपना कॉन्फ़िगरेशन कर दिया. ये आपकी आइडेंटिटी हो गई एक तरीके से. तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन को अटैच कर दिया हर एक कमिट के साथ में. तो जब भी आप गिट की हेल्प से कुछ भी चेंजेस करोगे और आप उस चेंजेस को गिटहब की तरफ लेके जाओगे, गिटहब में जाके सेव करोगे, तो उस टाइम पे आपके इंफॉर्मेशन में आएगा कि भाई प्रिया6971 या प्रिया भाटिया ने चेंजेस किए हैं, उसकी ईमेल आईडी जो है वो ये है.
ठीक है, तो मैं ये कमांड्स आपको शेयर कर दूंगी, बट दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन सी कि कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सो मैं ना एक फोल्डर और क्रिएट करती हूँ। लेट मी जस्ट क्रिएट अ गूगल डॉक जहां पे ना मैं कमांड्स लिखती जाती हूँ साथ साथ, ताकि आप लोग जब सेशन के बाद जाओ और एग्जीक्यूट करो तो कोई प्रॉब्लम ना आए। गेट कमांड्स, ठीक है, वैसे तो ऑनलाइन सर्च करोगे बड़ा इजीली मिल जाएगा, बट स्टिल पहली बार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। सो पहला मैंने बताया गेट हाइफन हाइफन वर्जन, जिससे आपको वर्जन पता चलेगा। फिर मैंने बताया गेट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम, एंड यहां पे आप अपना नाम लिखोगे, योर नेम, ठीक है। फिर आप लिखोगे गेट कॉन्फिग हाइफन हाइफन, अब लिखते हुए हो सकता है कि कुछ जैसे ये बाय डिफॉल्ट चीजें चेंज कर रहा है ना, तो चेंजेस कर दे। तो आप एक बार नेट पे रेफर कर लेना, अगर कुछ कमांड नहीं चलती तो वैसे चल जाएगा। योर ईमेल आईडी एट द रेट, जो भी ईमेल आईडी है, gmail.com और email.com जैसा भी है, आपको ईमेल लिखना है। इससे क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया, इससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद दिस, व्हाट विल हैपन विद दिस, दिस इंफॉर्मेशन is attached to every commit we make. Always remember that. अब ये कमिट क्या होता है, कमिट वर्ड का मतलब क्या है, वो उसके बारे में अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और सब समझ में आ जाएगा, तो वह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। ठीक है, डन है। तो ये हमारे बेसिक काम है जो कि हमें करने हैं। कब करोगे ये काम, उससे भी ऊपर वाला काम क्या है, टू इंस्टॉल द गिट इन योर लोकल सिस्टम। इंस्टॉलेशन के बाद का काम है। डन है जी, क्लियर है जी, आगे बढ़े, ऑल गुड, कोई गड़बड़, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, बढ़े आगे। तो हमने देख लिया कि गिटहब को गिटहब कॉन्फ़िग कैसे करते हैं, दिस इज ऑल्सो वी हैव सीन। अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द गिट आर्किटेक्चर, करें बात। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द गिट आर्किटेक्चर। बेसिकली सबसे पहले आप अपने वर्किंग डायरेक्टरी में होते हो, आप अपने लोकल में काम करते हो। कोई भी बंदा अगर उसको एक प्रोडक्ट बिल्ड करना है तो वो अपने लैपटॉप में जो उसको सिस्टम प्रोवाइड कर रखा है कंपनी वालों ने, या फिर उसके पास जो अगर पर्सनल लैपटॉप है तो वो उसमें अपना काम करेगा। तो सबसे पहले तो आपके पास में सारी लोकल फाइल्स होंगी जिस पे आप अपना काम कर रहे होगे, एंड ऑब्वियसली दीज आर द लोकल फाइल्स, यू आर वर्किंग इन योर ओन लैपटॉप, सो दीज आर द फाइल्स विच आर अनट्रैक्ड फाइल्स, या फिर मैं बोलूंगी कि ये सभी फाइल्स क्या है, मॉडिफाइड फाइल्स है। जैसे हमने अभी जो एग्जाम्पल लिया कि अगर आपके पास डेटा इंजेक्शन डॉट पी वाई फाइल है, आपके पास मे बी एनालिसिस डॉट पी वाई फाइल है, आपके पास कोई डेटा सेट डॉट सी एस वी फाइल है, कि सभी फाइल्स आपकी इंटरनली आपके सिस्टम में स्टोर है। तो ये क्या हो गया, वर्किंग डायरेक्टरी स्टेज हो गया। अब इस स्टेज से आप जाते हो नेक्स्ट स्टेज में, जिसको हम बोलते हैं स्टेजिंग स्टेज, स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग एरिया। अब यहां पे जाने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करते हो, यू विल यूज अ कमांड गिट एड। गिट एड से आप अपने वर्किंग डायरेक्टरी से अपनी सभी फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में भेज देते हो, या फिर जो भी फाइल आपको भेजनी है उसको। स्टेजिंग एरिया क्या है, इट इंडिकेट्स अ स्टेज, सो इट बेसिकली चेंजेस
स्टेज्ड फॉर द नेक्स्ट कमिट। बेसिकली आप इंटरनली सिस्टम को बता रहे हो कि ये जो फाइल मैंने ऐड करी है ना स्टेजिंग एरिया में, ये फाइल को मुझे कमिट करना है, ये फाइल को मुझे गिटहब पे लेके जाना है। समझ में आ रहा है? ऑल गुड। इस फाइल को मुझे ट्रैक करना है। डन। इस फाइल में मैंने चेंजेस करे हैं, कुछ भी समझ लो। क्लियर है? तो पहले हम इतना काम करते हैं, फिर आर्किटेक्चर में आगे बढ़ेंगे। अब इंप्लीमेंटेशन पे चलते हैं। मैं क्या करती हूँ ना, मैं कुछ फाइल्स ले लेती हूँ पहले तो मैं ना एक प्रोजेक्ट ले लेती हूँ अपना, जिसमें बड़ी सारी फाइल्स है। देख रहे हो आप कितनी सारी फाइल्स हैं? तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट है मेरा रखा हुआ, इसको हम उठाते हैं और आपके फोल्डर में डाल देते हैं। हम्म, ठीक है। तो अब आप ये इमेजिन कर लो कि आपके पास में ये पूरा के पूरा जो सेटअप है, ये जो एनवायरमेंट है, ये जो फाइल्स हैं कस्टमर सेगमेंटेशन टास्क के लिए, ये सारी की सारी फाइल्स आपके वर्किंग डायरेक्टरी में। आप देख सकते हो क्या इन फाइल्स को अपने एंड से? दिख रही है आपको? आपके सिस्टम में दिख रही है? देख पा रहे हो आप अपने सिस्टम में? गिटहब पे दिख रही है? कहीं नहीं दिख रही होंगी। ये मेरे वर्किंग डायरेक्टरी में। यस एवरीवन, ये मेरे लोकल सिस्टम के पास अवेलेबल है ये सारी की सारी फाइल्स। सही है? ठीक है, डन है। आगे बढ़े। अब हम वीएस कोड ओपन करते हैं। वीएस कोड को ओपन करने के लिए यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ओपन इन टर्मिनल। राइट क्लिक करके हमें ओपन इन टर्मिनल करना होता है। यहां पे आप लिखते हो कोड डॉट। जैसे यहाँ पे लिखते हो तो आपके पास में वीएस कोड उस स्पेसिफिक पाथ पे ओपन हो जाता है। ठीक है। तो आप देखोगे कि जो फोल्डर्स आप मेरे फाइल में देख रहे थे, वो सभी फोल्डर्स आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल हैं। वो सभी फोल्डर्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। देख पा रहे हो आप सब लोग? डन। सब कुछ है आपके पास में? एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द फाइल? यस, बिल्कुल ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम व्यू में जाके टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, डन है। ऑल गुड। एक और काम करते हैं, क्योंकि अब लेट्स से कि मैंने प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिया, मुझे अपनी चेंजेस को गिटहब में लेके जाना है, तो मैं एक नई रिपोजिटरी भी क्रिएट कर लेती हूँ। सो हाउ कैन वी क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी? मैं अपने गिटहब प्रोफाइल में जाऊंगी। आई विल गो इनसाइड दिस न्यू एंड आई विल से कस्टमर सेगमेंटेशन। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो। दिस रिपोजिटरी contains all the required files for the customer segmentation project implementation. We'll talk about licenses also, Lagandi, at the very end. Don't worry. ठीक है, डन है। कर दिया हमने क्रिएट। अब यहां पे मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रही। विजिबिलिटी बाय डिफॉल्ट पब्लिक है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो रिपोजिटरी प्राइवेटली रखनी है, आई डोंट वांट टू शेयर दिस टू एनीवन, या फिर अगर मुझे शेयर भी करना है तो मुझे लिमिटेड मेंबर्स के साथ में करना है, तो यू कैन ऐड देम एज अ कोलैबोरेटर्स। बट अभी के लिए मैं पब्लिक रख रही हूँ। इसमें रीडमी ऐड करने का ऑप्शन होता है, आप ऑन कर सकते हो। अभी मुझे कुछ रीडमी ऐड नहीं करनी, मैं ऑफ कर रही हूँ। डॉट गिट इग्नोर करके फाइल अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो रिपोजिटरी क्रिएट करते हुए, तो यू कैन डू दैट, बट मुझे नहीं करना। लाइसेंसेस बेसिकली किस, अगर आप लेट से कोड यूज करते हो तो किस तरीके से कौन से लाइसेंस आपको यूज करने हैं, मुझे अभी कोई लाइसेंस के अंदर नहीं घुसना। दैट इज नॉट समथिंग विच इज राइट नाउ माई फोकस। तो मैं कुछ भी यूज नहीं कर रही। आई टॉक अबाउट मोर विद रिस्पेक्ट टू लाइसेंस पार्ट इन माई लेटर पार्ट ऑफ द सेक्शन। लेट्स जस्ट क्लिक ऑन
क्रिएट रेपोजिटरी। क्रिएट हो गई, देखो इसके अंदर कुछ है नहीं, बट रेपोजिटरी क्रिएट हो गई है। आप ऊपर यूआरएल भी देख सकते हो, github.com priya6971 कस्टमर सेगमेंटेशन। अब अगर मुझे चाहिए कि मुझे ना अपने प्रोजेक्ट में लोगों को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करके अपने फोन से ऐड कर सकती हूँ। तो आई कैन जस्ट ऐड पीपल, मैं इनवाइट कर सकती हूँ यूजर नेम देके, या फिर फुल नेम देके, या फिर उनका ईमेल आईडी देके, राइट? आई कैन ऐड। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई want to add, let's say, Krishnayak, so I can add him, है ना? If I want to add, let's say, Mukesh, I can add him, and so on. ठीक है, अभी के लिए मुझे किसी भी कोलेबरेटर को ऐड नहीं करना। लेट्स सपोज कि ये मेरा खुद का कोड है, तो लेट्स गो बैक। ठीक है जी, बट आपको पता है कि ये किस लिए काम हो रहा है। ऑब्वियसली जब आप कंपनीज में काम करते हो या आप अपने खुद के प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हो, तो यू वर्क यूजुअली विद टीम्स, सो इन दैट केस दिस स्पेसिफिक फीचर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अब आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स दिख रहे होंगे, हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन सी कि गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट ब्रांच, गिट रिमोट, गिट पुश, इन सब के बारे में ही हमें डिस्कस करना है। तो जब हम लास्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे, तो यू विल ऑब्जर्व कि ये सारी की सारी फाइल्स जो आपको अभी इस टाइम पे आपके लोकल वर्किंग डायरेक्टरी में दिख रही है, वो आपको मेन रिमोट रेपोजिटरी, गिटहब रेपोजिटरी में दिखेंगी, और यही हमारा मेन फोकस है। ठीक है, तो कैसे एग्जीक्यूट करें, चले इसको देखें। शेल वी मूव फर्दर? सबसे पहले, सबसे पहला स्टेप होता है गिट इनिट। जैसे ही आप गिट इनिट करते हो, तो होता क्या है, जैसे ही आप, नाउ दिस इज द implementation to upload all your files in working directory to remote repository over here GitHub। तो कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैंने पहला स्टेप क्या बोला, फर्स्ट स्टेप यू हैव टू से git init। git init क्या करेगा, वो बाय डिफॉल्ट आपकी डॉट गिट फाइल को इनिशियलाइज कर देगा। अब डॉट गिट फाइल का पर्पस क्या होता है, बेसिकली वही जो हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में, टू ट्रैक द चेंजेस। तो गिट कमांड्स, हमें बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस भी मिल जाएंगी इसकी। ठीक है, ये सारे एरिया होते हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, बट मैं थोड़ा सा कमांड्स और एक्सप्लेनेशन का कोई लिंक अच्छा सा मिलता है तो दिखती हूँ। आई थिंक दिस इज गुड, दिस पीडीएफ इज गुड। तो आप यहाँ पे देखोगे कि what we are doing is we are doing a git init। तो इसने क्या किया, इट इनिशियलाइजेस एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी एज गिट रेपोजिटरी। तो बेसिकली आप ये मान सकते हो कि जितने भी आप यहाँ पे अब चेंजेस करोगे, जितने भी चीजें आप यहाँ पे ऐड करोगे, वो सब ट्रैक हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पे एलएस करते हो,
तो क्या आपको यहाँ पे डॉट गिट फाइल दिख रही है क्या? When you do ls is for getting the entire list of the files available in that specific folder. तो क्या आपको यहाँ पे डॉट गिट करके फाइल दिख रही है जो आपने क्रिएट करी है? डॉट गिट हब नहीं, डॉट गिट। ls हाइफन फोर्स करते, force is specifically being useful to give the list of the hidden files as well. अब दिख रही होगी, दिख रही है? पहली पहली फाइल जो आपने आज के दिन क्रिएट करी है, इस टाइम स्टैम्प पे क्रिएट करी है, एंड दिस इज द फाइल नेम। देखिए आप सबको। सो यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व कि जो ये जो दो डॉट गिट फाइल है ना, ये डॉट गिट फाइल हमारी हिडन फाइल है। दिस इज द फाइल जो इज हिडन फाइल। तो हिडन फाइल देखनी है तो आपको ls हाइफन फोर्स विंडो में करना पड़ता है टू गेट द डिटेल्स ऑफ द हिडन फाइल्स एज वेल। तो यू कैन सी एच भी लिखा हुआ है, आपको यहां पे दिखेगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो हमने इनिशियलाइज तो कर दिया, हमें डॉट गिट फाइल भी दिख गई, विच विल हेल्प मी टू create a .git file and to track the changes to see what is happening behind the scene. ठीक है जी। अब लेट सपोज कि आपको ये सभी के सभी फाइल्स को ऐड करना है, तो आप कमांड लिखोगे git add dot। क्या हुआ यहां पे? लेट्स सी द git स्टेटस। तो ये पूरी की पूरी फाइल्स आपकी आ गई हैं कि ये फाइल्स अवेलेबल है, बट ये फाइल्स हमने कमिट नहीं करी है। तो बेसिकली जैसे ही आपने गिट एड डॉट किया तो हुआ क्या? अब देखो, या तो आप स्पेसिफिक फाइल का नाम लिख दो जिस भी फाइल को आपको कमिट करना है ना, आपको अपने रिमोट रिपोजिटरी में लेके जाना है। अगर आप बोलते हो कि मुझे तो सारी फाइल्स फोल्डर की लेके जानी है, जैसे अभी इस स्पेसिफिक केस में मुझे करना था, तो आपको लिखना पड़ेगा गिट एड डॉट। तो इससे क्या हुआ, वो बाय डिफॉल्ट सभी की सभी फाइल्स को उठाएगा और कौन से एरिया में ले जाएगा? स्टेजिंग एरिया में। लेट्स गो बैक। तो ये कहाँ आ गए? स्टेजिंग एरिया में आ गए। हमने बोला कि भाई देखो, आपको ना अब ये सारी फाइल्स को कमिट करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो जब हम कमिट की बात कर रहे हैं तो वी हैव अ कमांड गिट कमिट। उससे क्या होगा कि अब आपकी सारी की सारी फाइल्स आपके लोकल रिपोजिटरी जो आपके पास में डॉट गिट है उसमें कमिट हो जाएंगे। सो बेसिकली ऑल योर committed changes will be stored locally now। आपकी कमिट हिस्ट्री में वो सभी चेंजेस स्टोर हो जाएंगे। तो हमने फर्स्ट स्टेप गिट वर्किंग डायरेक्टरी से गिट ऐड करके स्टेजिंग एरिया में ले आए, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप में हमें स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी डॉट गिट के अंदर लेके जाना है। करें, चेक करें कैसे करेंगे, कमिट करके देखें। गिट कमिट, यहां पे आप मैसेज भी लिख सकते हो हाइफन एम करके, all files committed। कुछ हुआ? कुछ हुआ? आपकी सारी फाइल्स कमिट हो गई हैं, आपकी सारी फाइल्स एक तरीके से लोकल रिपोजिटरी में जा चुकी है। हो गया? अब आपको चेक करना है, फिर से आप गिट स्टेटस करके चेक कर सकते हो। तो आप देखोगे कि सारी फाइल्स कमिट हो गई हैं। ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। तो ओवर हियर यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व ये सभी फाइल्स में कमिट हो गए, ऑल द फाइल्स आर कमिटेड। क्या हमें इतना समझ में आया? तो हमने देखा कि व्हाट इज द कोर पर्पस ऑफ गिट स्टेटस। इट शोज द मॉडिफाइड फाइल्स इन वर्किंग डायरेक्टरी। अगर आप किसी भी फाइल को मॉडिफाई करोगे, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को करके वो चीज भी, तो ये शो करेगा। ऐड हमने देख लिया। अगर आपको मान लो रीसेट करना है अपनी फाइल को, आपने गलती से कुछ फाइल को आगे भेज दिया है, तो रीसेट करने के लिए हमारे पास रीसेट है। डिफ, बेसिकली अगर किसी भी फाइल के बीच में डिफरेंस चेक करना है तो गिट डिफ है। अभी हमने गिट कमिट किया, तो इससे क्या हुआ, हाइफन एम करके हमने डिस्क्रिप्टिव मैसेज भी दिया
और इससे क्या हुआ कि आपके जितने भी स्टेज पे जो फाइल्स अवेलेबल थी वो जाके लोकल रिपोजिटरी में सेव हो गई है। बेसिकली इसको बोलते हैं कि आपने एक तरीके से फोटो ले ली, स्नैपशॉट ले लिया कि करंटली आपकी फाइल जो है वो कैसी दिख रही है। अब आप चाहते हो कि ठीक है ये सारा काम तो हो गया, बट मुझे ना अपने जो मैंने क्रिएट किया है कस्टमर सेगमेंटेशन वाला रिपोजिटरी, मुझे तो इसके अंदर जाके अपनी फाइल को डालना है। रीसेट मतलब, अगर मान लो आपने कोई फाइल डाली, जैसे आपने सारी फाइल्स डाली, अब आप बोलते हो शिट मैंने गलती से डाल दी, मुझे तो डालनी ही नहीं थी ये सब फाइल्स, तो आप रीसेट कर दो। मतलब कि आप वापस जा सकते हो पिछले स्टेप के अंदर। समझ रहे हो? आई होप इट इज फाइन, राइट? रीसेट का मतलब यू कैन गो बैक, रीसेट कर सकते हो। ठीक है, एनी हाउ, अब आपका काम क्या है? आपको तो अपनी फाइल्स को इसमें लेके आना है। तो आप देख रहे हो आपने गिट इनिट कर दिया, रीडमी फाइल आपने ऐड नहीं करी, आपने तो सारी फाइल्स को ही ऐड किया इनफैक्ट, फिर आपने कमिट भी कर दिया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इज इट फाइन? अब यहां पे ना ये आपको दिख रहा होगा कि ब्रांच के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो एक बार चेक करते हैं कि हमारी गिट की ब्रांच क्या है। तो आप देखोगे कि मैं मास्टर ब्रांच पे हूं अभी। तो हमारे पास में ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन सी ब्रांच में हमारा फाइल हमारा कोड सेव्ड है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा सेव्ड कोड है वो मेन ब्रांच में जाके कमिट हो जाए। तो अब यहां पे वी कैन गो विद गिट ब्रांच -m। मैं कॉपी कर रही हूं। अहो, हो गया। तो अब आपने किया क्या? आप अपनी मास्टर ब्रांच से मेन ब्रांच में चले गए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, मैं कुछ भी नहीं कर रही, आई एम जस्ट कॉपिंग। अब देखो गिट रिमोट जब मैं करती हूं, गिट रिमोट ये बेसिकली पाथ बताता है कि आप कौन सी पाथ में अपनी रेपोजिटरी की कौन सी पाथ में फाइल्स को अपलोड करना चाहते हो। जब आप यहां पे गिट रिमोट कर रहे हो तो क्या आपके पास में कोई पाथ आ रहा है क्या? कोई पाथ आ रहा है यहां पे? कुछ भी नहीं आ रहा। मतलब कि अभी मेरे सिस्टम को पता ही नहीं है कि उसको कहां पे जाके इस सारी फाइल्स को अपलोड करना है। तो मुझे वो पाथ देना पड़ेगा। तो अब मैं बोलूंगी कि भाई तेरे को ना यहां पे जाना है, इस पाथ में जाना है, दे दे। क्लियर है? दे दू पाथ? पाथ दे दू? इज इट फाइन? जैसे ही मैंने ये दिया, अब आप फिर से उस कमांड को रन करो। क्या दिख रहा है अब आ रहा है पाथ कि मेरे को कहां पे जाके इसको इंसर्ट कराना। इज इट फाइन? इज इट गुड? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ब्रांचेस के बारे में हम दोबारा आएंगे। व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस वी हैव, व्हाट इज एग्जैक्टली डू वी मीन बाय ब्रांच। बट अभी के लिए आप ये मान लो कि मुझे अपने फाइल्स को, अपने डेटा को, अपने जितने भी लोकल वर्किंग डायरेक्टरी में फोल्डर्स हैं उनको मेन ब्रांच में अपलोड करना था, इसलिए मैं मेन में चली गई। अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम मास्टर में भी कर सकते हैं। ये अलग अलग तरीके के रास्ते हैं। जैसे आपके घर जाने का रास्ता में भी 5 गलियां होंगी घर जाने के लिए। तो यू विल चूज कि कौन सी गली से मैं जाऊं। घर पहुंचना घर ही है, तो पहुंचना गिटहब के पास ही है। एक तरीके से ब्रांचेस को आप ये अज्यूम करके चलो कि रास्ते हैं अलग अलग। तो अभी के लिए मैं मेन वाले रास्ते से जा रही हूँ। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो शायद मैं फिर से मास्टर वाले रास्ते पे स्विच कर जाऊं। देखते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, अब कितने रास्ते होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले मैं आपको बस एक फ्लो बताना चाहती हूँ कि कैसे हम अपनी फाइल्स को वहां पर रिमोट रिपोजिटरी में अपलोड कर रहे हैं। तो क्या हम फाइनल स्टेप पे चले? हमारे पास में लोकल रिपोजिटरीज कहाँ गए? हाँ, यहां पे आ गए, कमिट कर दिया हमने। अब लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप क्या है? टू गो फॉर द remote repositories to upload all the files and folders related to the
project, है ना, in our GitHub. करें? क्या बोला है लास्ट टाइम मेरे को गिटहब वाले उस भैया ने? मेरे को बोला कि अब आप अपने, अच्छा इसको करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं गेट पुश। कौन सी कमांड यूज करते हैं? गेट पुश। वो आपको दिख भी रहा होगा। तो मैं इसने बोला कि आप अपने मेन में जाके, क्योंकि आपने मेन में हो ना, अभी मेन में गए आप, मेन में आपने पाथ स्पेसिफाई किया है, तो आप अपने मेन में जाके अपनी फाइल्स को पुश कर दो। ठीक है, कर देते हैं जी। ओहो, कॉपी क्यों नहीं हो रहा? फिर से ट्राई करें, नहीं तो मैनुअली लिखेंगे। हुआ हुआ, कुछ तो हुआ, कुछ तो हो रहा है। हो गया। तो बेसिकली अब ये बोल रहा है, रिफ्रेश करते हैं, बूम, जितनी भी फाइल्स थी सारी की सारी आपकी यहां पे आ गई। आ गई सारी फाइल्स। मेरा पूरा प्रोजेक्ट अपडेट हो गया एक ही बार में। ये देखो, चेक करो, आपको भी दिख रहा होगा अब तो। ये देखो, पब्लिक है, कोई भी चेक कर सकता है। हम्म। टोकन का इशू यहां पे तो नहीं आता है। टोकन अनुज, जनरेटिव एआई डोमेन में जब आप प्रॉम्प्ट्स लिखते हो तब इशू आता है। अभी तो हम गेट और गिटहब की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कोई टेक्निकली इशू नहीं आना चाहिए टोकन्स में। Yes, Deepak, I'll talk about it. That's true. That's true. Whatever you have mentioned is correct. तो क्या हमें फ्लो समझ में आया? हमने क्या किया? गेट इनिट, फिर हमने गेट ऐड किया, फिर हमने थर्ड स्टेप में क्या किया था? ऐड करने के बाद हमने क्या किया था? गिट कमिट -m, हमने कोई डिस्क्रिप्टिव मैसेज प्रोवाइड किया जिससे कि वो लोकल रिपोजिटरी में गया। और उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने क्या किया था? हमने ऑब्वियसली थोड़ा सा ब्रांच के साथ प्ले अराउंड किया था। वी डिड गिट ब्रांच -m मेन। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी आप लोगों को। फिर हमने गिट रिमोट से पाथ ऐड किया था कि हमें कहाँ पे अपलोड करनी है अपनी फाइल्स को। मैं एग्जैक्ट कॉपी कर देती हूँ वो पाथ भी। ये हमने पाथ ऐड किया कि भाई हमें कॉपी कहाँ करना है अपने कोड को। फिर हमने क्या किया था? फिर हमने क्या किया था इसके बाद? पुश कर दिया फाइनल रिजल्ट को। फाइनल जो फाइल्स है उसको हमने पुश कर दिया। क्या हमें ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है? क्या हमें ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है? हालांकि जब भी आप रेपोजिटरी क्रिएट करोगे तो ये सीक्वेंस आपको बाय डिफॉल्ट दे रखा होगा, बट क्या अब हमें समझ में आ रहा है कि इनका पर्पस क्या है? कैसे जैसे ही हम गिट ऐड डॉट करते हैं तो वो स्टेजिंग एरिया में हमें लेके जा रहा है। कैसे ही हम कमिट करते हैं तो वो हमें लोकल रिपोजिटरी के डॉट गिट फाइल में कमिट करवा रहा है। और जैसे ही हम पुश करते हैं तो कैसे वो हमें रिमोट रिपोजिटरी पे लेके जा रहा है। क्या हमें ये बात समझ में आ रही है? इज इट फाइन? इज इट ओके? आस्क मी फॉर एनी क्वेश्चंस। इसके बाद हम एक और बात डिस्कस करेंगे ब्रांच को लेके। बताओ, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं ब्रांच को लेके। ब्रांच क्या होता है? जैसे हमने अभी पढ़ा कि मेन, मास्टर, ये क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, जैसा कि मैंने बोला रास्ते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज अ गिट ब्रांच। ठीक है। गिट ब्रांच बेसिकली क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ अ इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ डेवलपमेंट जिसमें आप चेंजेस करते हुए जाते हो। अब यूजुअली मेन ब्रांच और मास्टर ब्रांच में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, टेक्निकली स्पीकिंग दोनों एक ही बात है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि वो इंट्रोडक्शन दोनों का अलग अलग टाइम पे हुआ है। अगर आप देखो तो जो भी नई रेपोजिटरीज है उसमें यू विल ऑब्जर्व दैट मास्टर इज द डिफॉल्ट ब्रांच। क्या आपने थोड़ी थोड़ी देर पहले देखा था जब मैं अपने प्रोजेक्ट में गेट ब्रांच करके सर्च किया मैंने? इफ यू रिमेंबर, जब मैंने स्टार्टिंग में गिट ब्रांच करके सर्च किया तो मेरे पास आंसर क्या आया? मास्टर। तो डिफॉल्ट ब्रांच जो है आज के टाइम पे कन्वेंशनली मास्टर को रखा गया है। ठीक है। पहले मेन होता था। फंक्शनलिटी वाइज दोनों सेम है। न्यू गिटहब कन्वेंशन के हिसाब से न्यू गिटहब कन्वेंशन के हिसाब से ये बोला गया कि जो मेन है ना वो डिफॉल्ट ब्रांच होनी चाहिए। मास्टर और मेन एक तरीके से यू कैन अज्यूम कि एक ही तरीके की ब्रांचेस हैं, एक ही नाम है, एलियस नेम आप कंसिडर कर सकते हो। पहले के टाइम पे मास्टर को डिफॉल्ट ब्रांच बोलते थे, और क्योंकि मेरा जो सब इंस्टॉलेशन और सब कुछ है दैट इज अ ओल्डर टाइप, तो वहां पे मेरे पास में मास्टर आ रहा है। हो सकता है कि आप लोग के पास में सीधा मेन आ रहा हो, है ना? डिफॉल्ट ब्रांच आज के टाइम पे नए गिटहब कन्वेंशन के टाइम से बेसिकली 2020 में चेंजेस हुए थे, उसको नाम दे दिया गया मेन। गिट इसको भी सपोर्ट करता है, गिट इसको भी सपोर्ट करता है, लेकिन जो नई रेपोजिटरीज बन रही हैं उसमें हम बाय डिफॉल्ट जो ब्रांच लेके चलते हैं वो मेन लेके चलते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, क्योंकि हम आज के टाइम के हिसाब से चलेंगे, हमने अपने डिफॉल्ट ब्रांच को चेंज करके मेन कर दिया। बट अगर आप मास्टर में भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आज के टाइम पे जितना भी कोड लिखा जाता है वो बाय डिफॉल्ट एक मेन ब्रांच पे ही लिखा जाता है। अब उस मेन को आप मास्टर भी बोल सकते हो, इट्स कंप्लीटली ओके। टेक्निकली देर इज नो डिफरेंस। You can say historically Git used master branch as a default branch name. In 2020, it gets changed to main branch. तो टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको आप अगर आज के टाइम पे काम कर रहे हो तो यूजुअली आप आज की कन्वेंशन को फॉलो करते हुए करोगे। इसीलिए हम यहाँ पे मेन ब्रांच के साथ काम करते हैं, हमने यहाँ पे चेंज कर दिया था बीच में। तो अगर हम यहाँ पे देखें ब्रांच इन गिटहब और गिट, कुछ भी सर्च कर सकते हो आप, तो यू कैन सी, देख रहे हो आप लोग, इस तरीके का सीक्वेंस है, रास्ता है। जो भी आप काम कर रहे हो, ग्रीन कलर की एक ब्रांच दिख रही है आपको, ये बाय डिफॉल्ट मेन ब्रांच है। तो जो भी आप अगर ओरिजिनली चेंजेस कर रहे हो और अगर आप अपनी खुद की कोई ब्रांच का नाम नहीं दे रहे तो वो इस मेन ब्रांच में होगा। डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कन्वेंशन है। बट इसके अलावा आप अपनी खुद की नई ब्रांचेस भी क्रिएट कर सकते हो टू डू योर प्रोजेक्ट वर्क। क्या हमें ब्रांच समझ में आया? एक तरीके से रास्ता, कि कौन से रास्ते पे जाना है घर पहुंचने के लिए। बाय डिफॉल्ट एक ही रास्ता आप यूज करते हो, एक ही गली आप यूज करते हो जाने के लिए, बट आप चेंज कर सकते हो। दैट इज द मेन पॉइंट। अब लेट से कि मेन ब्रांच पे काम हो रहा है, आपने एक और प्रोजेक्ट में काम किया, लेट से आप फीचर पे काम कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग अ फीचर और यू आर क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क और यू आर डिजाइनिंग समथिंग। एक ही प्रोजेक्ट का काम है, बट आप यहां पे लेट से दूसरे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो उसी सेम प्रोजेक्ट में।
तो आप यहाँ पे एक अलग ब्रांच क्रिएट कर सकते हो डिजाइनिंग के नाम से, कि मेन ब्रांच में आपके पास मेन कोड है, बट इसके अलावा जो दूसरा काम है वो डिजाइनिंग वाले ब्रांच के अंदर है। एंड फाइनली आप अपने चेंजेस को देखने के लिए मर्ज भी कर सकते हो ब्रांचेस को। क्या हमें समझ में आ रहा है ब्रांच का मतलब क्या है, मेन और मास्टर ब्रांच क्या है, क्या कन्वेंशन था पहले, आज के टाइम पे कन्वेंशन क्या है, और क्यों हमने यहाँ पे गिट ब्रांच हाइफन एम मेन किया। क्या हमें ये सारी बातें क्लियर है? इज दिस समथिंग क्लियर टू एवरीवन? ऑल गुड? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि गिटहब की डिफॉल्ट ब्रांच क्या है जहां पे आपका मेन कोड सेव होगा, तो यू विल से आज के टाइम पे द डिफॉल्ट गिटहब्स डिफॉल्ट ब्रांच नेम इज मेन। ठीक है, हिस्टोरिकली इट वॉज मास्टर ब्रांच। क्लियर है? कोई डाउट, कोई दुविधा यहां तक की पोर्शन में जितना हमने डिस्कस किया? सब क्लियर है ना? तो इसको करने का रीजन क्या है डिफॉल्ट में? क्योंकि ये कन्वेंशन है भाई, और कोई रीजन नहीं है। इट्स जस्ट दैट मोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस uses this uses, or you can say follow this convention, and that's the reason of changing the branch name from master to me. Simple. Done. चेंजिंग भी क्या, रीनेमिंग। रीनेमिंग हमने रीनेम किया है, हमने कुछ नहीं किया, हमने रीनेम किया द ब्रांच नेम फ्रॉम मास्टर टू मी, हमने बस नाम बदला। डन। आगे बढ़े? शेल वी मूव फर्दर? ऑल गुड? तो यहां पे अगर हम दोबारा आते हैं यहां पे, तो यू विल ऑब्जर्व, अगर आप गिट ब्रांच करते हो तो आपके पास में सारी ब्रांचेस की लिस्ट आ जाएगी। अगर आपने खुद की नई ब्रांचेस क्रिएट करी है तो वो भी आ जाएगा। अब क्योंकि हमने कुछ किया नहीं था, हमारे पास में डिफॉल्ट मास्टर करके आया, जिसको हमने रीनेम करके क्या कर दिया था, मेन। अब अगर आप यहां पे फिर से चेक करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे गिट ब्रांच करके फिर से चेक करते हो, तो आपको एक ही, जो हमने रीनेम किया था मास्टर से मेन, वही ब्रांच दिखेगी। यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रांच है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपको नई ब्रांच क्रिएट करनी है, तो हाउ कैन यू क्रिएट दैट? यू कैन से गिट ब्रांच, और आप अपने ब्रांच का नाम लिख सकते हो। जैसा कि मैंने बोला, डिजाइनिंग करके मुझे ब्रांच क्रिएट करनी है जहां पे मैं डिजाइन वाला काम करूंगी सीक्वेंस में, या फिर फीचर करके एक मुझे ब्रांच क्रिएट करनी है जहां पे मैं और फीचर्स क्रिएट करूंगी अपने प्रोडक्ट के लिए, एंड सो। गिट चेकआउट, चेकआउट क्या करता है? अगर मान लो आपको मेन ब्रांच से डिजाइनिंग वाली ब्रांच में जाना है, अगर आपको डिजाइनिंग ब्रांच से फीचर्स वाली ब्रांच में जाना है, तो चेकआउट इज बेसिकली यूज टू स्विच टू अनदर ब्रांच एंड चेकिंग इट आउट इनटू योर वर्किंग डायरेक्टरी। फिर उसके बाद गेट मर्ज, मर्ज क्या करता है? सभी ब्रांचेस को एक में मर्ज कर देगा। तो अगर आपको चाहिए कि आपके आपके पूरे प्रोजेक्ट का काम हो गया है, अब जो आपने अलग अलग हिस्से बना रखे थे, अब आपको इन सभी ब्रांचेस को मर्ज करना है एक ही प्रोडक्ट के अंदर, तो आप गिट मर्ज को यूज करते हो। और गिट लॉग क्या करता है उसको तो हम देख सकते हैं। गिट लॉग बेसिकली लॉग्स आपको जनरेट करके देगा कि जो आपने, जैसे मैंने यूजर नेम डिफाइन किया था प्रिया भाटिया, ईमेल था मेरा ये, तो ये दिखा रहा है कि ऑथर प्रिया भाटिया ने इस ईमेल आईडी, जो ये जिनका ईमेल आईडी ये है, सैटरडे को जून 27 को इस टाइमिंग पे सभी फाइल्स को कमिट किया। तो ये सभी लॉग्स जो हैं वो मेरे सेव हो रहे हैं। कौन सी ब्रांच में किया है वो भी पूरा दिख रहा है। एवरीथिंग इज सेव्ड। कमिट की आईडी क्या है वो भी आपको दिख रही होगी।
अब आप अगर दोबारा से जहां पे आपने कमिट किया वहां पे जाते हो, सो यू विल सी 21 मिनट्स अगो कमिट हुआ है। आप यहां पे भी चेक कर सकते हो, आपको एक ब्रांच दिख रही होगी मेन करके। कैन यू सी? सिर्फ एक ही ब्रांच है मेरे पास में, मेन। ठीक है, यहां पे आप गए कमिट के अंदर, आप देखोगे कि प्रिया ने कमिट किया है और आईडी दिख रही होगी आपको। व्यू कमिट डिटेल्स में जाओगे, यू विल सी द आईडी। क्या क्या कमिट किया है, ये सारी चीजें प्रिया ने ऐड करी है। ये सब प्रिया ने ऐड किया है, जो आपको ग्रीन में दिख रहा है, ये सब प्रिया ने ऐड किया है। दिख रहा है? कमिट की आईडी AE84244। अगर आप वापस जाते हो, इफ यू विल सी स्टार्टिंग AE84244, स्टार्टिंग के जो डिजिट्स हैं वो कॉमन होंगे, टू वेरीफाई कि वही सेम कमिट वहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ऑल गुड? क्या हमें ये बातें क्लियर हो रही है? क्या हमें ये सारी बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? इज इट फाइन? इज इट ओके? हम्म। कोई गड़बड़ अभी तक जितना हमने डिस्कस किया? कोई दिक्कत? ब्रांच में क्या दिक्कत है? कौस्तुभ, कैन यू जस्ट लेट मी नो? ब्रांच को तो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर दिया अभी। बताओ क्या प्रॉब्लम आ रहा है? बताओ बताओ। लोकेश, पहली बार ऑब्वियसली अगर आप प्रोडक्शन के बारे में बात करो तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट अगर एक स्टोरी लाइन की तरह से समझने की कोशिश करोगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने आर्किटेक्चर में समझा, मेजरली तो देखो तीन ही कमांड्स हैं। वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में जाना है, गिट ऐड। स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी में जाना है, गिट कमिट। लोकल रिपोजिटरी से रिमोट में जाना है, गिट पुश। फॉर एग्जाम्पल, एक और काम करते हैं, सेम स्टेप दोबारा करें, एक बार दोबारा से करें, एक सेम स्टेप, चेंजेस करें कुछ फाइल में। लेट से मुझे ये नहीं रखना, मुझे कोई लोगो नहीं रखना, ठीक है? और उसके बाद ठीक है, मैंने लोगो हटा दिया, बाकी सब एज इट इज रखते हैं। फाइल को सेव कर देती हूँ मैं, ठीक है? चेंजेस कर दिए ना मैंने। अब एक बार लेट मी चेक द गेट स्टेटस। तो ये क्या बोल रहा है कि आपने क्या किया है, यहां पे मॉडिफाई किया है किसको? readme.md को। क्या ये सही बोल रहा है? क्या मैंने readme.md को मॉडिफाई किया है? बिल्कुल किया है, अभी अभी मैंने आपके सामने डिलीट कर दिया पूरा पूरा लोगो। तो गेट स्टेटस से मुझे पता चला कि अच्छा, स्टेटस अभी क्या है, किसी ने तो इसको मॉडिफाई कर दिया। ओके, अब यहां पे अगर मैं यहां पे चेक करूं गिट डिफ, गिट डिफ, तो क्या यहां पे ये दिखा रहा है कि मॉडिफाई क्या हुआ है? डिफरेंस क्या है? क्या ये दिखा पा रहा है कि एग्जैक्टली exactly कहां पे मैंने प्रॉब्लम की है? जो ये रेड कलर में आपको दिख रहा है वो स्टेट कर रहा है कि प्रिया ने यहां पे इसको मॉडिफाई कर दिया। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी अभी किया, पकड़ लिया इसने, क्योंकि सब कुछ इंटरनली वो देख रहा है, आपका गिट सब कुछ देख रहा है वो। ठीक है, अब मुझे इस चेंजेस को, जो मेरा गिटहब में फोल्डर बना उसमें चेंजेस करना है। अच्छा, अगर मैं यहां पे अब इसे रिफ्रेश कर रही हूं, अगर मैं यहां पे, कहां गया मेरा, ये रहा, रिफ्रेश कर रही हूं, तो क्या लोगो तो अभी भी आ रहा है? अब मुझे लोगो को यहां से हटाना है। करें? क्या करेंगे? फिर से गिट ऐड, एंड यहां पे बस मुझे रीडमी फाइल पे करना है अभी तो, और कोई तो फाइल नहीं चेंज करी ना मैंने, रीडमी फाइल करी है। कर दिया?
अब क्या करूं? कमिट कर दूं, -m, उसमें आप मैसेज लिख दो, रिमूव्ड लोगो। अगर ऑल फाइल होती तो आप डॉट लिखते, सिंपल डॉट, गेट एड डॉट। अभी क्योंकि एक ही फाइल है तो उस फाइल का नाम लिख दो, दैट्स इट। क्योंकि अगर अगर आपको याद हो, पहले जब मेरे को सारी फाइल्स करनी थी, अपलोड करनी थी गिटहब पे, मैंने गेट एड डॉट लिखा था, तो उससे बाय डिफॉल्ट सारी फाइल्स हो गई। अब क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही फाइल पे काम करना है, क्योंकि मैंने एक ही फाइल में चेंजेस किए, तो मैंने उस फाइल का नाम लिख दिया। कमिट कर दे, कमिट हो गया, मैसेज भी चला गया रिमूव्ड लोगो। अब क्या करना है? कमिट करने के बाद हो गया क्या, रिमोट पे चला गया क्या चेंजेस? नहीं, अभी तो लोकल रिपोजिटरी डॉट गिट में चला गया। अब मुझे इसको कहां डालना है? रिमोट। गिट पुश, कहां पुश करना है? गिट पुश कहां पुश करना है? अपने मेन में ना, गिट पुश ओरिजिन मेन। देखे, कुछ तो हुआ है, देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। रिफ्रेश करते हैं, लोगो आ रहा है, रीडमी में लोगो आ रहा है, क्लियर हो गया। नहीं आ रहा ना? आपने पुश कर दिया कहां पे? आपके रिमोट रेपोजिटरी में। अब आप यहां पे देखो, कमिट्स कितने हुए? कमिट्स कितने हुए? दो, एक पहले वाला, एक जो अभी किया। अंदर घुसे, 1 मिनट अगो क्या कमिट हुआ है? क्या लिखा था आपने मैसेज में? रिमूव्ड लोगो। आ गया आपके यहां पे? आया कि नहीं आया? हिस्ट्री आ रही है ना सारी सारी। उसके बाद आईडी देखो, E8EDD46। अगर आप यहां पे देखो ना, गिट लॉग, रिमूव्ड लोगों की आईडी देखो, E8EDD46। यही सेम आईडी आपको यहां पे दिख रही होगी। कैन एवरीवन सी दैट? कैन एवरीवन सी दैट? लोगो रिमूव हो गया है, आईडी ये है। अब आप इसके अंदर जाओगे तो यू कैन एग्जैक्टली सी कि चेंजेस क्या हुए। पहले ये था जो हमने डिलीट कर दिया, यही है। अब आप इसको 3-4 बार कर लो, आई कैन गारंटी यू कि आपको समझ में ना आए तो, क्योंकि सीक्वेंस यही है, करना यही है, हर प्रोजेक्ट के अंदर करना है। दिस इज द कॉमन फ्लो दैट यू हैव टू फॉलो। इट्स जस्ट दैट कि जब हम पहली बार करते हैं इन चीजों को, ऑब्वियसली डिफिकल्ट लगता है, बट एक टाइम के बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये कमांड्स है, इसको यूज करके मेरे को करना है, कोई डिफिकल्टी नहीं मिलेगी। हाँ, क्या हमें क्लियर हुआ? क्या हमें यहां पे गेट डिफ का पर्पस समझ में आया, कैसे वो डिफरेंस बता रहा है? गिट स्टेटस का पर्पस समझ में आया, कैसे वो स्टेटस बता रहा है, क्या चेंजेस हुए? क्या हमें यहाँ पे गिट लॉग का पर्पस समझ में आया, कैसे वो लॉग्स बता रहा है? करेंगे अनुज, करेंगे, आने दो। पहले क्यों, सिंपल तो लाइन समझ जाओ आप लोग, आप लोगों को और कॉम्प्लेक्स करना है, सिंपल तो चीजें समझ में आ जाए पहले। कॉम्प्लेक्स कर दिया मैंने अभी से तो आप लोग सर पकड़ लोगे अपना, ये क्या हो रहा है सेशन में, समझ ही नहीं आ रहा। एंड दिस इज वन ऑफ द कॉमन टॉपिक जहां पे मतलब एज अ बिगनर लोग अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि कुछ समझ नहीं आया सेशन में आज। बिकॉज मैंने जब पहली बार पढ़ा था तो मैंने भी यही किया था, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो आई डोंट वांट कि मेरा सेशन भी ऐसा ही हो। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है अभी तक जितना किया हमने अभी तक प्रैक्टिकली? जो जो स्टेप्स मैंने फॉलो करवाए वो क्लियर है? ऑल गुड? इतना मतलब ये बेसिक है। मतलब अगर आपको ये बेसिक भी नहीं आ रहा तो फिर आप एडवांस कर ही नहीं सकते। कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस क्रिएट करना, मर्ज करना, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ज्यादा आप लोगों के लिए। डन है? फाइन है? सबसे कंफर्मेशन मिल सकता है? कैन आई गेट अ क्विक कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीबडी नाउ? अब एक बार
एक नई ब्रांच बना के देखें। शेल वी क्रिएट सम न्यू ब्रांच और देखते हैं कि उस पे कैसे काम करेंगे। करें। अभी करंट ब्रांच कितनी ब्रांचेस है मेरे पास में, हमने देखा था कि एक ही ब्रांच है, मेन ब्रांच, कोई और ब्रांच नहीं है। अब यहां पे लेट्स से कि मुझे एक और ब्रांच क्रिएट करनी है, और लेट्स से कि मेरी ब्रांच का नाम मुझे क्रिएट करना है फीचर। मे बी वहां पे मुझे फीचर्स ऐड करने हैं, तो इसीलिए आई एम क्रिएटिंग अ न्यू ब्रांच विद द नेम ऑफ फीचर। तो वो क्रिएट करो। कैसे करेंगे क्रिएट? गेट ब्रांच, ब्रांच नेम। तो आप यहाँ पे ब्रांच का नाम दे सकते हो, मे बी फीचर लॉग इन करके मैंने एक और ब्रांच क्रिएट करी। डन। अब अगर आप फिर से चेक करो ना गिट ब्रांच, तो यू कैन सी आपको दो ब्रांचेस दिख रही होंगी लिस्ट के अंदर, दो ब्रांचेस दिख रही होंगी, फीचर लॉगिन और मेन। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? एवरीवन कैन सी दैट। अब लेट से करंटली आप मेन ब्रांच पे हो, आपको पता है, आपने थोड़ी देर पहले देखा कि आप मेन ब्रांच में आपने मर्ज किया है सब कुछ। आपको फीचर लॉगिन वाली ब्रांच में जाना है, तो यू विल यूज गेट स्विच, एंड यहां पे आप अपने जो नए ब्रांच है उसमें जाओगे आप। सो यू कैन गो अहेड। तो अब आपने अपने आप को मेन ब्रांच से स्विच कर लिया फीचर लॉगिन वाली ब्रांच में। ठीक है। तो अब आप अगर फिर से चेक करते हो गिट ब्रांच, तो यू कैन सी जिसमें आप करंटली हो ना, वो ग्रीन कलर से हाईलाइट होगा। पहले आपका मेन हाईलाइट हो रहा था हर जगह पे, अब आप देखोगे फीचर लॉगिन हाईलाइट हो रहा है। बेसिकली ये कह रहा है कि आप अभी इस स्पेसिफिक ब्रांच में हो। डन। क्या मैं ये बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है? अब लेट से कि मुझे इस ब्रांच में ना एक नई फाइल क्रिएट करनी है। उस फाइल का नाम है login.py। अच्छा, टच जो है वो यहां पे नहीं चलेगा। पावर शेल में नई फाइल कैसे क्रिएट करें? पावर शेल में नई फाइल कैसे क्रिएट करें? mkdir, तो डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी ना। मुझे हमेशा जो बैकएंड पे रहता है वो लिनक्स का ही सब सिस्टम रहता है। इको से भी हो सकती है आई थिंक। इको ट्राई कर सकते हैं। बट मुझे जो दिखाई दे रही है कमांड वो ये दे रही है। एक बार चेक करते हैं। ओके, इट इज क्रिएटेड आई थिंक सो। ठीक है, आई थिंक इट इज क्रिएटेड। तो हमारे पास में login.py करके फाइल आ गई है। ठीक है। अब इस फाइल में मैं क्या करूं? आई वॉन्ट टू मेक सम चेंजेस। क्या ऐड करें इस फाइल में बताओ? कुछ भी ऐड कर देते हैं। दिस इज अ लॉगिन स्पेसिफिक पाइथन फाइल। ठीक है, सेव कर लेते हैं। कर लिया। अब क्या करें? गिट स्टेटस चेक करें क्या हो रहा है। बोल रहा है कि login.py फाइल हुई है, बिल्कुल हुई है। गिट एड login.py चला गया। कहां चला गया? कहां गया ये? कहां गया? स्टेजिंग एरिया में। नेक्स्ट काम क्या करूं? कमिट कर दे। -m एडेड लॉगिन फाइल।
फाइनल काम, अब मुझे इसे पुश करना है अपनी नई ब्रांच के अंदर जो कि फीचर लॉगिन है। सो आई से गेट पुश -u origin फीचर लॉगिन। हो गया पुश। तो फीचर लॉगिन करके दिख रहा है आपको? कोई तो नई ब्रांच दिखी हमें, रिफ्रेश भी नहीं किया मैंने, उसी में ही चेंजेस दिखा रहा है। और जब मैं इसके अंदर जा रही हूं तो यू कैन सी इट इज सेइंग दैट यू हैव टू ब्रांचेस नाउ एंड दिस ब्रांच इज वन कमिट अहेड ऑफ मेन, क्योंकि हमने यहां पे एक कमिट किया है अभी अभी। क्या कमिट किया है? वी हैव एडेड अ लॉगिन फाइल। दिस इज अ लॉजिक स्पेसिफिक, स्पेसिफिक की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, कोई बात नहीं, पाइथन फाइल। क्या सब कुछ मेरे गिटहब पे रिप्रेजेंट हो रहा है जो भी मैंने अभी अभी किया? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। डन। अब लेट सपोज कि मुझे इन दोनों ब्रांचेस को एक एक में ही मर्ज करना है। मुझे नहीं चाहिए कि यार एक अलग ब्रांच फीचर्स की चल रही है, एक अलग ब्रांच कस्टमर सेगमेंटेशन प्रोजेक्ट की चल रही है, मेन ब्रांच। आई जस्ट वांट टू कंबाइन बोथ ऑफ देम, आई जस्ट वांट टू मर्ज बोथ ऑफ देम। क्या करूं मैं? क्या करूं? मर्ज कर दे, करके देखे। गेट मर्ज, कौन सी ब्रांच मर्ज करनी है? फीचर लॉगिन। हो गया। चेक करें एक बार। डन। अब आप देखोगे फिर से ये मेन पे आ गया है, और मेन में ही आपके पास में सब चीजें मर्ज हो गई हैं। एबल टू मर्ज, दीज ब्रांचेस कैन बी ऑटोमेटिकली मर्ज्ड। तो अब आप यहां पे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पे बोल रहे हो कि मेरे पास में ये जो फीचर लॉगिन वाली रिक्वेस्ट है इसको बेस मेन में ले जाओ। एडेड लॉगिन फाइल, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। पुल इज बेसिकली मेंट फॉर पुलिंग द चेंजेस। हो गया। एंड नो कॉन्फ्लिक्ट्स, मर्ज पुल रिक्वेस्ट, कंफर्म मर्ज, एंड इट इज डन। इट इज डन, मर्ज हो गया। अब आप अगर अपने फिर से उसी कोड पे जाते हो तो यू कैन सी एवरीथिंग इज बीइंग मर्ज्ड। दो ब्रांचेस थी, हमने उनको आपस में मर्ज कर दिया। डन है जी, ऑल गुड। तो बेसिकली हम ऐसा अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट क्यों करते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग द डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस? एनीवन हैविंग एनी गेसेस? तो हमने देखा कि कैसे हम दो दो ब्रांचेस को हमने एक फीचर लॉगिन करके बनाई, और हमने देखा कि कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे हम स्विच करते हैं, कैसे हम चेक करते हैं, मर्ज करते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि ब्रांच अलग अलग क्रिएट करने का पर्पस क्या है? इंडस्ट्री में हम क्यों करते हैं? बताओ, क्या लगता है? लेट्स से कि मैं एक यूज केस पे काम कर रही हूं, एंड द यूज केस इज टू क्रिएट अ ई कॉमर्स वेबसाइट। मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम करना है, मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। अब जो आपकी मेन ब्रांच है, जो डिफॉल्ट ब्रांच है, उसमें हमेशा आपके पास में जो प्रोडक्शन रेडी कोड होगा वो लिखा हुआ होगा, जो बेसिकली वेरीफाइड है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है, वो सब आपको वहां मिलेगा। तो हो सकता है कि आपकी जो मेन ब्रांच है उसके अंदर अलग अलग फाइल्स अवेलेबल है, होम पेज के रेलेवेंट, फिर लॉगिन से रेलेवेंट, फिर कार्ट से रेलेवेंट, फिर पेमेंट से रेलेवेंट। इस तरीके से एक ई कॉमर्स वेबसाइट में ये चार कंपोनेंट्स मेन है, और ये अवेलेबल है आपके मेन पेज पे।
अब लेट्स से कि आपके पास में अलग अलग डेवलपर्स हैं। ऑब्वियसली एक बंदा तो उस वेबसाइट पे काम नहीं कर रहा होगा, वही बात आ गई फिर से जहां से हमने शुरू किया था। डेवलपर, बहुत सारे डेवलपर्स जो है आपस में काम कर रहे होंगे अलग अलग फीचर्स पे। कोलेब्रेशन ही तो प्रॉब्लम था ना। अब देखो कैसे कोलेब्रेशन हो सकता है। लेट्स से कि ये डेवलपर वन है, और इस डेवलपर का काम है, इसने अपना काम क्या लिया है कि मैं ना एक विश लिस्ट फीचर को डिजाइन करना चाहता हूं। इस वेबसाइट के अंदर आई वॉन्ट टू क्रिएट अ फीचर नेम्ड एज विश लिस्ट, कि अगर कोई बंदा आज के टाइम पे कुछ अफोर्ड नहीं कर रहा, बट वो एटलीस्ट अपनी विश लिस्ट में उसे ऐड करके रख सकता है, कि जैसे ही महीने के एंड में या स्टार्टिंग में जब भी सैलरी उसकी क्रेडिट होगी तो वो उस चीज को खरीद सके। तो ही वॉन्ट टू डू दैट। डेवलपर टू कहता है कि अभी ना बहुत सारे बग्स हैं, तो मैं क्या करता हूं, आई विल डू अ बग फिक्सेस। लेट से पेमेंट वाले कोड में बहुत सारे बग्स हैं, मुझे उसको फिक्स करना है। डेवलपर थ्री बोलता है कि अरे यार मेरे को ना डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा वेबसाइट का, मुझे तो वेबसाइट को रीडिजाइन करना है। आई वॉन्ट टू रीडिजाइन द वेबसाइट, टेम्पलेट बढ़िया नहीं लग रहा मुझे। अब तीनों का पर्पस अलग अलग है। ये मान लो डेवलपर ए है, इसका नाम इसका नाम डेवलपर बी है, और इसका नाम क्या है, डेवलपर सी है। और तीनों का ऑब्जेक्टिव जो है आज के लिए, आज के अपने कोड के लिए, वो अलग अलग है। अब ऑब्वियसली देयर इज एन इशू। सारा कोड मेरा मेन ब्रांच में पड़ा है, तो मेन ब्रांच में कोई होम पेज को छेड़छाड़ कर रहा होगा, कोई पेमेंट पेज को कर रहा होगा, कोई लॉगिन फीचर को कर रहा होगा, कोई कार्ड फीचर को कर रहा होगा। और टेस्टिंग के बाद ही समझ में आएगा, जब रिव्यू होंगे चेंजेस, जब वो मेन में जाएंगे, कि क्या सब चीजें ठीक है या नहीं। अगर मान लो हमारे पास इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हो, कि ठीक है फीचर के विद रिस्पेक्ट अगर किसी को काम करना है तो वो फीचर वाली ब्रांच में जाके काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मे बी देर इज अ फीचर लॉग इन स्पेसिफिक ब्रांच। किसी को अगर पेमेंट वाले में करना है तो एक और अलग से ब्रांच है मेरे कोड में, फीचर पेमेंट करके। किसी को अगर वेबसाइट को रीडिजाइन करना है तो मेरे पास एक अलग से ब्रांच है, लेट्स से वेबसाइट डिजाइनिंग की। तो अब ये लोग ना इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं तो इससे होगा क्या, कि देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट्स अंडर, अनलेस दे आर मॉडिफाइंग द सेम फाइल। क्या आप मानते हो? तीनों को अपना अलग अलग एनवायरमेंट मिलेगा, अपना अलग अलग ये काम कर रहे होंगे, कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ब्रांचेस ही अलग अलग है। और फाइनली जब इनका काम हो जाएगा तो ये सब आपस में मर्ज करके मेन में डाल देंगे। तो मेन ब्रांच भी हमेशा एक स्टेबल रहेगी। तो मेन का पहला रिवीजन जो रहेगा वो प्रीवियस वर्जन रहेगा। जैसे ये अपना अपना काम कर लेंगे, मर्ज कर देंगे, तो एक नया वर्जन मेन ब्रांच में आ जाएगा, स्टेबिलिटी के साथ में वो भी। तो इसीलिए लोग मल्टीपल ब्रांचेस को क्रिएट करते हैं वाइल बिल्डिंग द प्रोजेक्ट्स। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? तो इट्स काइंड ऑफ, इफ वी हैव मल्टीपल ब्रांचेस इट अलाउज अस टू डू द सेफ एक्सपेरिमेंटेशन। हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन, हमें पता है कि हम मेन में कुछ छिड़कानी नहीं कर रहे, हम तो अपनी अपनी ब्रांच में सेफ प्ले कर रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आई कैन रिवर्ट बैक, आई कैन रीसेट, क्योंकि मेरा मेन कोड तो सही है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम मैंने किया ही नहीं है ना? फिर आई कैन इजिली रोल बैक। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे मैंने बोला कि मैं वापस जा सकता हूं, मुझे पता है कि मैंने मेन में कुछ चेंजेस नहीं किए। तीसरा, जैसा कि मैंने बोला कि कोलेबरेशन करना बड़ा आसान हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीन क्या, 3,000 डेवलपर्स भी काम करेंगे और अलग अलग ब्रांच पे काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद इससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन पे कोड था मेन के अंदर, वो नहीं फटेगा कभी भी। ऐसा नहीं होगा कि मेरी मेन वेबसाइट जो है वो फट गई क्योंकि किसी डेवलपर ने कुछ गलत कर दिया। तो प्रोडक्शन वाला जो कोड है जो मेन में है वो अपना वहीं पे वही रहेगा, मैं तो मल्टीपल ब्रांचेस का प्ले अराउंड कर रहे हैं। इससे एक इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट
एनवायरमेंट मिलेगा सभी को। क्या मैं ये बात समझ में आ रही है? इज दिस समथिंग विच इज क्लियर टू एवरीवन? ऑल गुड? जिनको डाउट्स थे ब्रांचेस के ऊपर, आई थिंक अब क्लियर हो गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि हमने बहुत डेप्थ में कवर किया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़े कि नहीं बढ़े? जल्दी बताओ। कोई दुविधा, कोई डाउट? अब मान लो आप लोग कहते हो कि प्रिया आपका ना कोड बढ़िया लग रहा है, मुझे ना इसमें थोड़ा सा रेफरेंस के लिए ना मुझे इस पे काम करना है। तो मैंने बोला कोई नहीं, ले लो, मेरा कोड पब्लिक है। तो आपने कहा मैं कैसे लूं? अगर मुझे अपने लोकल फोल्डर में इस पूरी फाइल्स को कॉपी करना है, जो भी आपके फोल्डर्स बने हुए हैं, तो क्या मेरे को एक एक करके अंदर जाके डाउनलोड करना पड़ेगा क्या फाइल्स को? कर सकते हो, मतलब डाउनलोड का ऑप्शन होता है, बट ये तो बड़ा हेक्टिक सा प्रॉब्लम हो गया कि मैं एक एक फाइल में जा रही हूँ और फिर यहाँ पे कहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है और मैं कर रही हूँ। मैंने बोला नहीं, ऐसा थोड़ा ना करते हैं। अगर आपको एक ही बार में करना है तो हमारे पास क्लोनिंग का ऑप्शन होता है। तो यू कैन सी, जिप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, आप गिटहब डेस्कटॉप पे भी काम कर सकते हो, बट यूजुअली हम क्लोन करते हैं। आप कॉपी करोगे, यहाँ पे लोकल से HTTPS का लिंक कॉपी करोगे, आप अपने टर्मिनल पे जाके खोल सकते हो, अपने VS कोड में भी बोल सकते हो, जिस भी पाथ पे आपको कॉपी करना है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको शोकेस करके दिखा रही हूँ। लेट्स से कि मैं सी ड्राइव में, लेट्स से मुझे कहाँ जाना है? ओहो, अच्छा, मुझे जाना है, आई थिंक फोल्डर है ये, उसमें, ठीक है। और लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे मुझे क्लोन करना है, तो गिट क्लोन, मैंने कॉपी कर दिया। देख रहे हो क्या हुआ? देखते हैं जरा, इस पाथ में जाते हैं, देखते हैं क्या हुआ। दिसंबर बैच में मैं गई और मेरे पास में पूरा के पूरा फोल्डर आ गया। जो मैंने यहाँ पे पाथ स्पेसिफाई किया, आपको दिखेगा कि पूरा के पूरा फोल्डर मेरा यहां बैठा है। तो आपको किसी भी फोल्डर को मैन्युअली डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट क्लोन इट। क्लोन का मतलब होता है कि आप अपने रिमोट रेपोजिटरी के जितने भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, उनको आप अपने लोकल पे लेके आ रहे हो। क्लियर है? गुड है? कैसे क्लोन करते हैं समझ में आया? कॉपी करना है पाथ को, पेस्ट करना है विद द कमांड गिट क्लोन, जो भी मैंने आपको शेयर करी। अपने पाथ पे चले जाओ जहां पे भी आपको सेव करना है। ऑल गुड जी? डन है जी? आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं क्या? ठीक है। अब आप बोलते हो मुझे ना अपने इंटरनल लोकल सिस्टम पे नहीं जाना, मुझे आपके इस कोड को मेरे रेपोजिटरी पे शो करना है। ये जो मैंने कोड आपका लिया, मैं चाहता हूं कि ये मेरे गिटहब रेपो पे आ जाए। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? फोर्क करो, एक बार ट्राई करो क्या आ रहा है। ये मेरा गिटहब रेपो है, फोर्क का ऑप्शन मिल रहा होगा आप लोगों को, करना है एक बार। अब मैं करूंगी तो मेरी खुद की ही कॉपी बन जाएगी। आप करो, दूसरे लोग फोक करते हैं, जैसे आपको दिखेगा बहुत लोग करते हैं, मतलब रिपोजिटरीज में जाके फोक, वो नंबर दिख जाता है। जैसे मान लो इसमें देखें, ये अभी रिसेंट ही है वैसे तो, इसमें किसी ने नहीं कर रखा। इसमें देखें, यहाँ भी नहीं कर रखा, मतलब मिल जाएंगे पुराने रिपोजिटरीज में, क्या पता किसी न किसी ने कर रखा हो। ये देखो इसमें कर रखा है, कैन यू सी? दो लोगों ने फोक कर रखा है। तो इस तरीके से आप फोक करके अपने रिपोजिटरी में चेक कर सकते हो। आया आप लोगों के पास? देखो मेरे पास नंबर आ गया। अब आप लोगों ने किया होगा तो 3 लोगों ने कर लिया। तो फोक आपको दिख रहा होगा, आप चेंजेस दिख रहे हैं सबको, अपने जितने भी फोल्डर्स है सब अपने रेपोजिटरी में देख पा रहे हैं। तो कई बार जो फ्रेशर्स होते हैं ना, वो खुद से प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करते, वो यही काम करते हैं, वो फोक कर देते हैं।
हालांकि हमें समझ में आता है कि ये फोक प्रोजेक्ट्स हैं जिसका कोई फायदा नहीं है, खुद से बिल्ड किए हुए अलग से दिखते हैं, बट या दिस इज व्हाट वी डू, वी मीन बाय फोक। ठीक है जी, डन है। फिर एक स्टार होता है। स्टार का मतलब होता है कि कितने लोगों को आपकी रिपोजिटरी बढ़िया लगी, कितने लोगों को आपको एक आपका ये काम पसंद आया। तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस स्टार। किसी दूसरे की रिपोजिटरी में जाके अगर आपको कुछ इंसाइटफुल लगता है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस स्टार। डन। अगर आपको ये रिपोजिटरी बहुत अच्छी लगती है, मतलब आपको लगता है कि आपने इसमें कुछ एडवांस काम किया हुआ है, तो आप इसे पिन कर सकते हो अपनी प्रोफाइल में। यू कैन पिन इट। पिन कर दिया, अपडेट हो गया। तो आपको दिखेगा, जैसे ही कोई बंदा आपकी प्रोफाइल में आएगा तो पिंड में सबसे ऊपर यही दिखेगा उसको। समझ में आया? अनपिन करोगे तो अनपिन हो जाएगा। अनपिन हो गया, अब नहीं दिख रहा होगा, अब सारी दिख रही है। कोई पिंड है ही नहीं इसलिए सारी दिख रही है। डन है जी। सिंपल है ये सारी बातें। अब तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। क्लोन समझ लिया, फोक समझ लिया, ब्रांचेस कैसे क्रिएट करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, क्या हमें ये सारी बातें समझ में आ रही है? और गिट और गिटहब कैसे आपस में काम करते हैं, क्या हमें क्लियर हो रहा है? अब मान लो अ, किसी और डेवलपर ने कुछ चेंजेस किए। एक तो मैंने अभी आपको पुल करके दिखाया था जब मैंने चेंजेस किए थे ब्रांचेस में। मान लो आप लोग मेरे साथ में टीम एज अ टीम काम कर रहे हो, है ना? आपने कुछ चेंजेस किए उस फाइल में, तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे न्यू पुल रिक्वेस्ट करके दिखेगा कि भाई इस बंदे ने चेंजेस किए, उसकी रिक्वेस्ट को पुल कर लो, अपडेट कर लो। ठीक है। तो लेट से मैं यहाँ पे कौन से उसमें करना है डिफाइन कर सकती हूँ, और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि क्या 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 चेंजेस हुए हैं। ठीक है ना? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, बट बेसिकली दिस इज द पुल रिक्वेस्ट ऑप्शन दैट वी विल बी हैविंग। फिर क्या क्या इश्यूज है, व्हाट आर द ओपन इश्यूज इन दिस कोड, यू कैन जस्ट मेंशन दैट। अब मान लो इन सब चीजों के बारे में करने के बाद मेरा मन कर रहा है कि नहीं यार ये रेपोजिटरी काम की नहीं है अब मेरे, मुझे तो इसको नया लुक देना है, नया प्रोजेक्ट बनाना है इसके साथ में। तो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड डिलीट दिस रेपोजिटरी। यू विल गो टू डिलीट, आई वांट टू डिलीट दिस, आई हैव रेड एंड अंडरस्टैंड। आप इसको फिर से लिखोगे एंड आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि आपका पूरा के पूरा काम गोन, डिलीट हो गया। जो भी हमने किया था सब डिलीट। आपके वीएस कोड में तो ऑब्वियसली रहेगा सब, बट आपने अपने रिमोट पे सब डिलीट कर दिया। क्या हमें ये बात क्लियर हो रही है?